Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to all our respected speakers, colleagues, and participants. I am Dr. Saqib Mushtaq, and I have the privilege of serving as your moderator for today's session. Organized under the platform of the Global Entomologist Network, it is an honor to open this career counseling workshop, Job Opportunities in the Gulf region. The Gulf region today stands among the fastest growing hubs for agriculture, food security, and environmental services. With increasing investment in modern farming systems, pest and disease management, greenhouse technology, and agricultural consultancy, the demand for qualified professionals is expanding rapidly. The aim of this workshop is twofold. Number one, to share practical insights into the career opportunities available in the Gulf and to provide guidance on how graduate and professionals like you can prepare themselves to meet these opportunities. Over the course of our discussion, we will explore current job trends and professional requirements in agriculture and allied sciences, the importance of preparing a competitive CV, building networks, and excelling in interviews, cultural and workplace adaptability in Gulf countries, and professional pathways in both industry and research domains. I am especially pleased to see participation from such a diverse group, from bachelor's and master's students to PhD graduates. This highlights that career counseling is not just a one-time step, but rather a continuous process of learning, self-improvement, and planning ahead. Before we move forward, I encourage all participants to engage actively, ask questions, and take advantage of knowledge and experience that our distinguished speakers will share. Remember, today's event is not just about listening. It is about networking, exploring opportunities, and shaping your professional journey. Moreover, I want to introduce myself. As most of you know that my name is Dr. Saqib, and I'm the founder and coordinator of this Global Entomologist Network. And also I have my team with some volunteers. Those are working with me, Dr. Mehreen, Aisha Faryad Khan, Mr. Amani Mulk, and we have some volunteers from different universities, different cities of Pakistan, and we are also expanding our network. Our next speaker is Mr. Muhammad Qamar Shehzad, a pest management and operations professional with more than 10 years of experience across Saudi Arabia and Pakistan. He holds a master's degree in agricultural entomology and has worked in diverse roles managing from research in biological control to leading operational terms in the pest management industry. Currently, he is serving as a branch manager at Trap Pest Control in Dammam, Saudi Arabia. He oversees service operations, regulatory compliance, and client relations. With his strong foundation in entomology and hands-on leadership in pest management, he brings valuable insights into building sustainable careers in this sector. Mr. Muhammad Qamar Shehzad, we are honored to have you with us. The floor is yours. Thank you. Please, I request, open your mic and start your presentation. Mr. Muhammad Qamar. Please open your mic. Are you here? I request my team, Madam Aisha, kindly contact Mr. Qamar Shehzad. Assalamualaikum, Dr. Sir, I'm here. I've just joined again. Yeah, please. We could not find. We are trying to find you, however, we could not see. I suggest if you start, you can start, please.
Okay, thank you. Thank you so much for inviting. Uh, Maybe you have given my introduction already. I'm Mohammad Qamar Shahzad, MSc Entomology from UF. My BSc was from Merit, and now I'm serving as a branch manager in Trap Pest Control, Dammam, Saudi Arabia. So, this is not a lecture. I have not prepared any slides. I just want to share, as you told me about the agenda, that we will share our journey. Sir, can you please open your video? So if you don't have slides, then it's good. You, mashallah. Yes. Yeah, sure. Thank you. Thank you so much. Okay, so first of all, as I have given my introduction, let me start from the beginning. My journey started after my MSc in 2013. I was working there in dengue control project, and after that, 3 months I served as a entomologist, assistant entomologist in NARC in Secretary. And after that, I got an opportunity in Saudi Arabia. It's a facility management company, Tamimi Global. I joined there as an entomologist. सर 4 years. सॉरी फॉर इंटरप्शन. अगर आप उर्दू में करें ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा. हमारे माशाल्लाह पश्तून भाई बहुत सारे चीजें ना, वो Okay, मसला है sure, उनके sure, लिए. sure, 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 sure. तो मैं बता रहा था कि मैंने फर्स्ट 2014 में ज्वाइन किया था सऊदी अरब में एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, तमीमी ग्लोबल कंपनी में एज एन एंटोमोलॉजिस्ट. एंड वहाँ पे 4 साल का अर्सा मैंने वहाँ पे सर्व किया. आफ्टर दैट पाकिस्तान में मैं काम करता रहा. हेक्साकेर पेस्ट कंट्रोल के नाम से एक कंपनी. बेसिकली आई वाज इन द फाउंडर्स. हमने खुद उसको फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया पाकिस्तान में, प्रोफेशनल एंटोमोलॉजिस्ट को लेके एक सेटअप. उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ ब्रांच मैनेजर इन 2023. देन अगेन मैं यहाँ पे एज अ ब्रांच मैनेजर मैंने ज्वाइन किया ट्रैप पेस्ट कंट्रोल में. तो जर्नी काफी जो है उसमें अप डाउन रहे हैं, वो अपने जो हमारे यंग एंटोमोलॉजिस्ट हैं उनसे शेयर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अ, यहाँ पे सेटअप है गल्फ में जॉब्स का, उसमें ये सीन है कि अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे. और वो अभी तक उस लेवल पे नहीं है कि हम उसको कह सकें कि सैचुरेशन है. तो जॉब का जो एक गैप है वो यहाँ पे है. तो इजिली जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है. क्योंकि ये चीजें जो हम फेस करके आए हैं, हमने नॉर्मली एक जो कॉन्सेप्ट है देखा हुआ है. क्योंकि ये सेटअप इस तरह है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इवन मैं जब खुद था ज्वाइन कर रहा था, तो हमें इन चीजों का आइडिया नहीं था कि वीजा कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे हम उसको लेके चलेंगे. तो ये चीजें अभी हम अपने यंगस्टर्स को गाइड करते हैं. यहाँ पे जो सीन है, दो तरह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. इधर कि आप डायरेक्ट इन द कंपनी जो है उसमें आए एज एन एंटोमोलॉजिस्ट, और आप यहाँ पे आज़ाद वीज़ा पे आए, देन जॉब सिक्योर करें. मैं जो फर्स्ट टाइम आया था तमीमी ग्लोबल कंपनी में, मैं कंपनी के वीज़ा पे आया था, इसलिए इतनी मुश्किलात नहीं हुई. तो कंपनी का वीज़ा हमेशा नंबर वन आप उसको देखें कि अगर आपको डिफिकल्टी नहीं चाहिए तो वो सर्च फॉर अ कंपनी वीज़ा. उसमें आपको मुश्किलात नहीं आती हैं, आपको फैसिलिटीज मिलती हैं. लेकिन उसमें थोड़े से जो काउंटर पार्ट्स जो इश्यूज आते हैं, सैलरी को लेके या आगे ग्रोथ को लेके आते हैं. तो मैंने जिस वक्त ज्वाइन किया था यहाँ पे तमीमी ग्लोबल कंपनी में, तो मैं पहले एंटोमोलॉजिस्ट आया. उसके बाद मुझे वहाँ पे उन्होंने ऑफर किया, देन ऑपरेशन मैनेजर, देन असिस्टेंट पार्क मैनेजर मैं रहा वहाँ पे. तो उसके साथ एडिशनल रोल्स मिलते रहे मुझे. मैंने हाउसकीपिंग को भी डील किया है, मैंने गार्डन को भी डील किया है, वेस्ट मैनेजमेंट को भी डील किया है. सो एक कम्बिनेशन था पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट में जिसको हम करते रहे. लेकिन अभी मैं जहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, इट्स ओनली अ प्रोफेशनल कंपनी फॉर पेस्ट कंट्रोल एंड लैंडस्केपिंग. तो ये दो शोबे ऐसे हैं जो यहाँ सऊदीया में हमने देखे हैं कि पेस्ट कंट्रोल एंड लैंडस्केपिंग, जहाँ पे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो काफ़ी हैं, रिगार्डलेस ऑफ द मेजर. यहाँ पे आपको एग्रानोमी के लोग भी मिलेंगे, सॉइल साइंस के लोग भी मिलेंगे जो पेस्ट कंट्रोल की जॉब कर रहे हैं. सो बेसिकली हमारे जितने भी एग्रेरियंस हैं उन्होंने एंटोमोलॉजी सबने पढ़ी है, बेसिक पढ़ी है. लेकिन जो एक इशू आता है वो ये आता है कि हमारे एकेडेमिया में और जो इंडस्ट्री है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है. हमारे जो यंगस्टर्स बुक पढ़ के आते हैं पेस्ट कंट्रोल की, वो बहुत बेसिक है, जबकि फील्ड पेस्ट कंट्रोल में जब आते हैं वो बहुत वसी फील्ड है.
तो उनको काफी सारी मुश्किलात आती हैं यहाँ पे, जो हमने भी फील किए हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते थे एंटोमोलॉजी, तो उसमें 501 एक कोर्स होता था, मुझे याद है, ह्यूमन इंसेक्ट्स और हाउस होल्ड का बेसिक आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी जाती है, और दैट्स इट, वो भी इंसेक्ट्स को लेके, क्योंकि हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं आर्थ्रोपोड्स, बस उसी को लेके पढ़ते हैं। बट इन द पेस्ट कंट्रोल बहुत वसी फील्ड है, आपको हर चीज को देखना पड़ता है। आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंसेक्ट्स हों, आपको रोडेंट कंट्रोल, बर्ड कंट्रोल, टर्माइट, स्ट्री एनिमल, पॉइजनस एनिमल, स्नेक, स्कॉर्पियंस, तो ये तमाम चीजें जो आपको यहाँ पे डील करनी पड़ती हैं। तो वहां पे आके जो इंडस्ट्री और हमारी एकेडेमिया है, उसका गैप जो है, वो आपको फील होता है कि ये चीजें तो हमें पढ़ाई नहीं की हैं। तो वहां आके हमारे जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं इधर और एग्रीरियंस हैं, उनको काफी मुश्किलात पेश आती हैं, और ये मुश्किलात हमने भी फेस की हैं। तो उसके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। तो ये जितने भी हमारे लिसनर्स हैं यहाँ पे, तो उनको मैं यही गाइड करूंगा कि सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करें। आप ये देखें कि आप किस तरह से, मतलब आपका क्या फोकस है। आप सिर्फ गल्फ में जॉब एक ऑब्टेन करना चाहते हैं, या आप उससे भी आगे जाना चाहते हैं, यूरोप, या वहां पे आपका क्या फोकस है। आप अपना एक गोल सेट करें, देन उस गोल को लेके, तो अभी हम रहते हैं यहाँ पे कि आप अगर गल्फ में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि ये नहीं कि आपने अगर बीएससी एमएससी की है तो उसके बाद आप कहें कि ओके मैं अब जाता हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। नो, यहाँ पे जो हमने दो तीन इश्यूज देखे हैं, वो सबसे बड़े ये हैं कि एक तो हमारे जो लोग यहाँ पे आते हैं, स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट। मैं आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे क्लास फेलो भी हैं डॉक्टर हाफिज मुश्ताक साहब, तो इन्होंने बड़ा एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया है यंगस्टर्स को गाइड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमने अब्रॉड में ये चीज देखी है कि दूसरी जो भी नेशनैलिटी है, वो अपने एक दूसरे नेशनैलिटीज को बहुत सपोर्ट करते हैं। इंडियन है तो इंडियन को सपोर्ट कर रहा है, बट पाकिस्तानियों में ये चीज बहुत कम देती है। और ये बड़ा एक अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है, ताकि जो हमारे ये यंगस्टर्स हैं, इनको नॉलेज हो, इनको पता हो कि हमने यहाँ पे आके क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना एक फोकस सेट करें, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ट्रेनिंग। क्योंकि आप लोग जब तक फील्ड की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो आपके लिए, आप वीजा कोई भी लेके आते हैं वो आपके लिए बेकार है। मैंने खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, लास्ट 2 ईयर से मैं यहाँ ट्रैप में एज अ ब्रांच मैनेजर सर्व कर रहा हूँ। दो मेरा डायरेक्ट हायरिंग के साथ नहीं है कंसर्न, हायरिंग हमारी हेड ऑफिस में होती है जद्दा में। बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने मुझे कहा। मैंने लास्ट 6 मंथ्स में काफी इंटरव्यूज किए हैं फॉर पोजीशंस ऑफ टेक्नीशियंस, एंटोमोलॉजिस्ट, एंड इवन फॉर ब्रांच मैनेजर्स एज वेल। तो जो सबसे बड़ा इशू है वो यही रहा है। इवन ये मैंने बाकियों में नहीं देखा, बट हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, वो जिस वक्त डिग्री करते हैं, उनको लगता है कि शायद हमें प्लेट में रख के मिल जाएगी जॉब। उनके पास फील्ड नॉलेज नहीं होता। मैंने सबसे पहले ये चीज यहाँ पे मैं देखी है कि हमारे लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग नहीं लेके आते हैं अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट की। अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट बहुत एक वसी जो है फील्ड है। उसमें सिर्फ हमारे यहाँ, तो मैंने जिस तरह का जिक्र किया है कि हम बुक्स में पढ़ के आ जाते हैं, एक हाउस होल्ड का 6 महीने का एक हम सेमेस्टर में पढ़ के कोर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके जब हम देखते हैं कि यार यहाँ पे तो रोडेंट कंट्रोल भी है, यहाँ पे स्नेक कंट्रोल भी है, अब वो चीजें हम एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स को लेके बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रेप्टाइल से भी वास्ता पड़ता है, यहाँ से आपको डॉग से भी वास्ता पड़ता है, बर्ड से भी। तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, फील्ड की आपको पता होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारा, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड नेशन है, इसमें अब कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। यहाँ के हमने देखा है, हमारे हम पेस्ट कंट्रोल यही समझते हैं कि एक हमने केमिकल की बोतल ली, साथ में हमने एक स्प्रे पंप लिया या फोगर लिया, स्प्रे किया, दैट्स इट। नो, आपको इंसेक्ट की बायोलॉजी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये इंसेक्ट है, जिसको मुझे कैसे कंट्रोल करना है। हम आईपीएम पढ़ते आए हैं आप आज तक बुक्स में कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स है, बट उसको फील्ड में कैसे अप्लाई करेंगे ये हमारे लोगों को नहीं पता। इवन पाकिस्तान में मैंने काम के दौरान देखा है, मैंने पाकिस्तान में 4 साल जो काम किया, उसमें देखा है कि हमारे यहाँ वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। ये कोविड के बाद लोगों को अवेयरनेस हुई है पेस्ट कंट्रोल की, लेकिन वो भी केमिकल कंट्रोल की हद तक। यहाँ आप सऊदीया में आते हैं, आपको बहुत से लॉज का पता चलता है, आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के लॉज हैं, बल्दिया के लॉज हैं, उसके बाद फिर आप
किसी बड़ी कंपनी के साथ आप अरामको के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप नियम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो लॉज हैं वो आपके सामने आते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ मैं केमिकल कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे अल्टरनेट मेथड यूज करना है, लेकिन हमारे लोगों को उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना गोल सेट करें, उसके बाद आप प्रॉपर फील्ड की ट्रेनिंग लें यहाँ आने से पहले। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है जॉब सर्च। आप जॉब सर्च कैसे करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जॉब्स आती हैं जो जैसे हमारे हाँ मशहूर है कि एजेंट्स के पास आती हैं। अब एजेंट्स का एक ऐसा ये एक बदनाम शोबा है कि उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं। वो आपको दिखाएंगे यूरोप की पिक्चर और भेजेंगे आपको शायद कराची के साहिल पे कहीं। तो ये बड़े इश्यूज आते हैं यहाँ पे कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है। तो उसके दो तरीके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो आजकल जैसे आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो बनाएं, उसको इतना स्ट्रांग करें कि जो कंपनीज हैं वो आपको खुद, मैं खुद जो भी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन के थ्रू यहाँ पे उन्होंने मुझे हायर किया। तो कंपनीज करती हैं अप्रोच, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपने जो काम किया है वो उसको प्रॉपर शोकेस करें, अपने काम को शो करें कि मैंने ये काम किया, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। जब कंपनी का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आपके पास होगा, दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू। वो आपको खुद अप्रोच करेंगे। उसके बाद ये तो है एक तरीका जॉब सर्च करने का, आप एक लिस्ट बनाएं अपना फोकस। फॉर एग्जांपल आप कतर में जाना चाहते हैं, आप दुबई में जाना चाहते हैं, आप सऊदी आना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी कह रहा है, आप सर्च करें कि कौन सी टॉप की कंपनीज हैं उस कंट्री की, उनकी एक लिस्ट बनाएं। हर कंपनी का पेज है लिंक्डइन पे, हर कंपनी का पेज है, आप उसको फॉलो करें। आजकल जितनी हायरिंग नॉर्मली चलती है, लिंक्डइन पे उनकी जॉब पोस्टिंग्स आती हैं। हमारा मसला क्या होता है, इवन आई एम फेसिंग द इशू, मेरे पास अब हमारे भाइयों को इतना पता नहीं होता, हम भी डेफिनेटली अपनी जॉब में बिजी होते हैं। मुझे हर दूसरे दिन रिक्वेस्ट आ रही होती है पाकिस्तान से, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा तलब यहाँ से है, मैं मुझे प्लीज कुछ जॉब। आई एम नॉट इन टू द हायरिंग। आप देखिए पहले उस बंदे की डेजिग्नेशन देखें, आइदर ही इज इन टू द हायरिंग और नॉट, देन उसको अप्रोच करें। अदरवाइज ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपके जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं। अब वो कंपनी में अगर कोई इवन अच्छी पोजीशन पे एक जीएम है, आप उसको डायरेक्ट एक मैसेज कर रहे हैं कि ये मेरी सीवी है, प्लीज गिव मी द जॉब, नो दिस इज नॉट अ राइट वे। ये ठीक तरीका नहीं है, इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। आप कंपनी को सर्च करें, उसकी ईमेल लें, उनको अपनी सीम एक प्रॉपर ईमेल ड्राफ्ट करें और उनको एक ईमेल भेजें अपनी सीवी के साथ। अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कांटेक्ट करेंगे। देन उनके लिंक्डइन पेज पे जाएं, कंपनी के लिंक्डइन पेज पे उनकी जॉब पोस्टिंग देखें, देन अप्लाई करें। ये नहीं कि आपने लिंक्डइन पेज पे देखा, वहां उनके जो भी आपको नजर आ रहे हैं आपने उनको भेजना शुरू कर दिए हैं। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें मैं खुद फेस कर रहा हूँ। अब मैंने उस पर मेंशन किया हुआ है, मैं ब्रांच मैनेजर मेरे लिंक्डइन पे है, लेकिन मुझे हर दूसरे दिन अब फिर जब आप लिंक्डइन पे आ रहे हैं, दैट इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, दैट बी प्रोफेशनल, उसको प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करें। हमारे लोग क्या है, इस्लाम भाई कैसे हैं आप, नो, ये आपका वो प्लेटफॉर्म नहीं है, जॉब के लिए प्लेटफॉर्म है। आप उनसे प्रोफेशनली तरीके से बात करें। अगर आपने गाइडेंस लेनी है तो उनसे पूछें कि आई वांट द इंफॉर्मेशन फॉर हायरिंग, वो आपको रेफर कर देंगे। जो आपके हायरिंग मैनेजर है, आप डायरेक्ट उनसे रब्ता करें। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप लिंक्डइन पे जो गैर जरूरी मैसेजेस करते हैं और गैर जरूरी बंदों को आप भेजते हैं। तो नंबर एक तो है कि आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, अपनी स्किल्स, आपके पास जो कोई एक्स्ट्रा है, आपकी सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास, आपके पास अगर कोई आईएसओ की सर्टिफिकेशन है, ये तमाम चीजें आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेंशन करें ताकि जो कंपनीज हैं उनको पता चले। यहाँ पे दो तरह की कंपनीज हैं सऊदीया में, प्रोफेशनल कंपनीज हैं पेस्ट कंट्रोल की, और कुछ है फैसिलिटी मैनेजमेंट। फैसिलिटी मैनेजमेंट ब्रॉडर एक एस्पेक्ट है जिसमें एक कम्बिनेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बड़ी कंपनी से, हाउसकीपिंग, पेस्ट कंट्रोल, उसमें पार्ट होता है गार्डनिंग, कैटरिंग, एवरीथिंग। तो उसमें पेस्ट कंट्रोल एक पार्ट होता है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज को। तो ये तो एक है तरीका, आप डायरेक्ट कंपनी को करते हैं। दूसरा तरीका है कि आप आजाद वीजा लेके आते हैं। अब आजाद वीजा जब लेके आते हैं तो उसमें आपको उसमें रिस्क होता है, 50-50 है आपके पास। वो इस वजह से कि आजाद वीजा अभी डे बाय डे लॉज चेंज हो रहे हैं। अभी आजाद वीजा की फीस काफी ज्यादा होगी है यहाँ पे। फिर डिपेंड करता है आपके पास 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, कितना है। आप 3 महीने का वीजा लेके आते हैं, 3 महीना आप जॉब सर्च करते हैं, आपको जॉब नहीं मिली, आपके पैसे जाए हैं।
या तो आप के यहाँ पे कोई हैं, आप उनसे रब्ता करके हैं जो आपको जॉब हंट में आपकी हेल्प आउट करें, तो आपको इसमें फायदा है जो आप ट्रैवल करें, कंपनीज के पास जाएं, सीवीज दें, इंटरव्यूज दें, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे ये भी होता है कि प्रेफर करते हैं। प्रेफर इस वजह से करते हैं क्योंकि जो अभी नए लॉज आए हैं उसमें यह है कि किसी भी कंपनी में एक नेशनलिटी 45% से ज्यादा मैन पावर नहीं रख सकती। अब जिस कंपनी में 45% ऑलरेडी मैन पावर है पाकिस्तानी, इसकी में भी वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आप आए कंपनीज में जॉब हंट के लिए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, उसके बाद उनको इंटरव्यूज दें, और कोशिश करें, अगर आप आज़ाद वीज़ा पे जाने चाहते हैं, अगर आप कैपेबल हैं, आप कोशिश करें 3 महीने की जगह 6 महीने या 1 साल का वीज़ा लेके आए, क्योंकि सम टाइम्स क्या होता है कि आप आते हैं आज़ाद वीज़ा पे, आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आपके जितने भी वो पैसे हैं वो जाए हैं देन। लेकिन ये है कि उसमें मैंने 50-50 इसी वजह से कहा है क्योंकि कंपनीज प्रेफर करती हैं कि अब वीजा नहीं है कंपनी के पास पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सऊदी लाज के हिसाब से होता है कि आपको, अगर आपने कोई खारजी मतलब कोई नॉन सऊदी पर्सन आपने हायर करना है, तो उसके अगेंस्ट आपको सऊदी भी हायर करना है। ठीक है, तो वो एक रेशो होती है, कंपनी के पास अब वीजा नहीं है तो लोकल वो हायर कर सकते हैं, तो इजीली ट्रांसफर हो जाता है, उसमें 50-50 चांस होता है। अगर तो आपके पास कंपनी का वीजा मिल जाता है डायरेक्ट अप्रोच से, लिंक्डइन से, और उनसे आप कन्वर्सेशन करते हैं थ्रू ईमेल, तो वेल एंड गुड है, उसमें आपके अखराजात बहुत कम आ जाते हैं। अगर आप आज़ाद वीजा लेके आते हैं तो 50-50 चांस है, ताकि उसमें समटाइम्स आपकी लक अच्छी है, आपको जल्दी जॉब मिल जाती है। लोग किसी को 1 हफ्ते में मिल जाती है, किसी को 1 साल में नहीं मिलती है। मेरे अपने कई जाने वाले हैं, इवन एंटोमोलॉजिस्ट हैं, वो 3 महीने के वीजे पे आए, इंटरव्यू दिए, नहीं मिले, देन अगेन उनको वापस पाकिस्तान जाना पड़ा, देन डायरेक्ट कंपनी के वीजा पे आए। तो ये था जॉब हंट कैसे करनी है। नंबर 3 पे आते हैं, वीजा का प्रोसेस क्या है। अच्छा, वीजा का प्रोसेस ये है, बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ एक हवा बना हुआ है कि यार वीजा हम कैसे करेंगे, हमें प्रोसीजर नहीं पता। कुछ प्रोसीजर हैं जो एजेंट के थ्रू ही हो सकते हैं, वो आप खुद नहीं कर सकते, तो एजेंट की शमूलियत इसमें लाजमी है। आप जो भी वीजा लेंगे वो कंपनी का होगा, आजाद होगा, एजेंट की उसमें शमूलियत लाजमी है। एक्सक्यूज मी सर, सर काइंडली विद इन 5 मिनट में आप वाइंड अप कर लें, फिर क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगी तो फिर टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। श्योर श्योर श्योर। तो आपने जिस वक्त करना है उसमें बेहतर ये होता है, समटाइम्स कुछ कंपनीज होती हैं उनके ऑलरेडी एजेंट्स होते हैं, डायरेक्ट उनके पास वीजा जाते हैं, वो आपसे अपनी प्रोसेसिंग फी प्लस वीजा फी लेते हैं, वो आपको समटाइम 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इसमें आपको कंपनी का वीजा मिल जाता है, आप पहुंच जाते हैं। आजाद वीजा में आपके एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं, वो रेंज करते हैं तकरीबन 7-8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, कि आपका कितना, आप 3 महीने का वीजा ले रहे हैं, 6 का या साल का। अदरवाइज कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपका किसी कंपनी के साथ रब्ता होता है, आप उनको डायरेक्ट उनसे डिस्कस करें कि आप वीजा, आप पाकिस्तान में किसी अच्छे एजेंट से जो कोई नोन हो, या अपने किसी दोस्त से रेफरेंस ले लें जिन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस किया हो, तो उन एजेंसी के पास आप वीजा मंगवा लें। उसमें यह है कि आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे, आप पहले एजेंसी से डील कर लें कि आपने हमसे कितने एक्सपेंस लेने हैं, क्योंकि अब मैं आया था यहाँ पे, मैं मुझे मेरा टोटल एक्सपेंस 35,000, 35,000 पाकिस्तानी रुपीज लगे थे, जिसमें मैं सऊदी आ गया था, तो उसमें मुझे कोई मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ी एजेंट की, या एजेंट को पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपने वीजा कैसे सिक्योर करना है। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, कुछ लोग अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स हैं, यहाँ पे आपको ऑपरेशन के रिलेटेड भी जॉब्स मिलेंगी, आपको सेल्स के रिलेटेड भी जॉब्स मिलेंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना फोकस बना के आना है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। अगर आपकी सेल्स स्किल्स अच्छी नहीं है, आप ऑपरेशंस में हैं, तो शुरू से फोकस रखें। होता क्या है, वो लोग जो ऑलरेडी ऑपरेशंस में अच्छे होते हैं, यहाँ आके जब उनको कुछ और नहीं मिलता, सेल्स की जॉब कर लेते हैं, देन क्या होता है कि जी टारगेट पूरे नहीं हो रहा है, वो एक जहनी टेंशन भी रहती है, जॉब भी अच्छी नहीं रहती है। तो अपना एक फोकस लेके चलें कि आपने ऑपरेशंस में आना है, आपने सेल्स में आना है, आपने मैनेजमेंट में आना है, तो उसको आप साथ लेके चलें। ठीक है, ताकि आपको यहाँ आके कोई मुश्किल ना हो। आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ, जैसे मैंने जिक्र किया कि हम बहुत बेसिक हैं पेस्ट कंट्रोल में, यहाँ आप आते हैं आपको बहुत सी चीजों से वास्ता पड़ता है जो हमें एंटोमोलॉजी में शायद हमने पढ़ी नहीं होंगी। आपको यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करने पड़ते हैं, आपको यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, स्कीमेटिक मैप्स, फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं आप उनके ऑडिट्स, हमारे यहाँ इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ आके आपको इंटरनेशनल ऑडिट फर्म से वास्ता पड़ता है, क्लाइंट के पास ऑडिट्स चल रहे होते हैं।
तो कुछ आपके पास बेसिक स्किल्स के साथ साथ आप कोशिश करें सर्टिफिकेशंस लेके आएं जो आपको यहाँ पे फ्यूचर में हेल्प करें। मेरे पास सिर्फ एमएससी की डिग्री नहीं है, मैं एमएससी के अलावा मेरे पास हेल्थ एंड सेफ्टी का इंटरनेशनल डिप्लोमा है निबोश का, मेरे पास आईएसओ की, आई एम लीड ऑडिटर एज वेल। मुझे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के मेरे पास लीड ऑडिटर के सर्टिफिकेट्स हैं। ये चीजें आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करती हैं, क्योंकि कंपनी जब आपको कंसीडर करती है तो उनको एक एंटोमोलॉजिस्ट लेमैन मिल जाता है इजीली, बहुत रीजनेबल अमाउंट पे। लेकिन जब आपके पास स्किल्स होती हैं देन यू आर इन अ पोजीशन टू बार्गेन, देन आप उनसे बार्गेन कर सकते हो अपनी टर्म्स पे। अगर आपके पास कुछ नहीं है, एक डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू आर बाउंड, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो आपको जो ऑफर करेंगे यू हैव टू टेक इट। अगर आपके पास ये स्किल्स होंगी तो आप अपने एंड पे आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं अपने टर्म्स पे कि मुझे ये चीजें चाहिए। बाकी यहाँ के एक इशू आता है, अक्सर लोग जो आते हैं वहां से उनको ये बड़ा होता है आते हैं कि फैमिली का क्या स्टेटस होगा। तो मेरा मशवरा जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि ये चीजें मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, हमारे जो कुलीग्स हैं, फेलोज हैं, इस चीज को, कि जब आप लोग आ रहे हैं तो 1 से 2 साल का अरसा आप ये सोच के आए कि मुझे सबसे पहले अपने आप को सेटल डाउन करना है मुझे यहाँ पे, उसके बाद आप फैमिली की तरफ फोकस करें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि उस चीज को लेके वो अपने कैरियर की ग्रोथ नहीं कर पाते उस तरह से, उनको यहाँ के इन्वायरमेंट का नहीं पता होता। कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये सारे उनके साथ मसले मसाइल चल रहे होते हैं, कंपनी वीजा नहीं दे रही है फैमिली को फिर अब वो बुलाना पड़ता है फिर क्योंकि यहाँ सऊदीया में कफील सिस्टम होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, लिमिटेशन ऑफ टाइम है। इस पे हम मजीद बात करेंगे, अगर दोबारा किसी को क्लियरिफिकेशन चाहिए होगी तो वो क्वेश्चंस में बता सकता है, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। साकिब साहब, टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें अगर किसी का माइक ऑन है। थैंक यू वेरी मच Mr. Mohammed Kamar for an excellent presentation. MashaAllah, you have shared your personal experience with our participants. And now it's time for the question answer session. We will now open the question answer session for our participants. I request all the participants, please send your questions in the WhatsApp group. So, inshallah, I will ask on behalf of you one by one, and inshallah, we will get the answers from our respected speaker. Thank you. I will see if there are some questions. अच्छा, मैं चलें जब तक कोई क्वेश्चन आता है मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं भी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो काफी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट सिंस 2013 के बाद माशाल्लाह आपको लाइव देख नहीं रहा आप, आपको हूँ। वीवर क्लास बिल्कुल बिल्कुल। फेलोज माशाल्लाह। और या मैं भी 8 साल सऊदी में रहा, सेम रियाज के अंदर। लेकिन बस बस शायद वन। उस वक्त आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, राब्ता नहीं हो सका। लेकिन आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम कि हम एक ग्रेट कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं और दोबारा से रीयूनाइट हुए हैं। जिस तरह आपने बताया कि हर नेशनलिटी, मतलब देखें अपार्ट फ्रॉम नेशनलिटी, सबसे पहले हम वी आर मुस्लिम्स। एज ए मुस्लिम हमें, हम सब भाई हैं। और अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम हम सब ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस को मतलब एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है और एक साथ रहता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई किसी का रिस्क नहीं छीनता, एक दूसरे की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ हमारी कह ले के हमारी इलाकाई कुछ वैल्यूज हैं कि जिसकी आप हेल्प करें वो फिर आपको कह ले के ना नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन मैं 2007 से घर से निकला हुआ हूँ, और बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर। लेकिन मैं 2007 से घर से निकला हुआ हूँ, दर दर का पानी पिया है, ठोकरें खाई हैं, बाहर भी गए हैं, कुछ कंट्रीज भी घूमे हैं। मैं ये समझता हूं कि आप जो भी किसी की हेल्प करें ना, अल्लाह की रजा के लिए करें। कोई आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोशिश ये करें कि जो आप चाहते हैं कि जो चीज आपको मिले वो आप देना शुरू कर दें ना। लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी, क्योंकि बाहर मेरी डिस्कशन होती थी चीजें, वो मतलब कोई किसी की हेल्प नहीं करता। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने आज यहाँ पे दी है माशाल्लाह इस फोरम पे, शायद इससे पहले आपको इस तरह मौका मिला हो। बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि शायद कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आपको कोई 5 मिनट 10 मिनट कोई सिंसेरिटी के साथ आपको दे आपके करियर काउंसलिंग के हवाले से।
तो क्योंकि एक उसका थोड़ा सा फैक्टर ये भी है कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर मगन है, सोशल लाइफ कम है, हर बंदा पैसे के चक्कर में है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है। तो ये भी एक कहने के डार्क साइड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हलाल रिस्क कमाने के लिए और इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ पाकिस्तान में से बेहतर मैं समझता हूँ गल्फ कंट्रीज हैं, क्योंकि मैं रह के आया हूँ, मुझे डिफरेंस फील होता है। मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गया वापस आए हुए। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि वाई यू केम बैक। मैं कहता हूँ जी बस अब आप लोगों को वहीं वहां भेजना है। अगर मैं वहां होता तो मैं शायद ये चीजें ना कर सकता ना वहां, क्योंकि आप मतलब डे एंड नाइट आप बिजी होते हैं। बाजू का अल्लाह पाक ने आपको सलाहियतें दी होती है कि आप यू कैन डू मेनी थिंग्स। और लेकिन सिचुएशन माहौल ऐसा होता है कि आप सिर्फ अपनी जॉब, अपनी फैमिली, नथिंग एल्स, खासतौर पर जब आप बाहर ममालिक में होते हैं। तो सर आप काइंडली ना अपनी जो पर्सनल स्टोरी है ना, जर्नी, थोड़ा सा इस तरीके के साथ कि आप समझें कि पिछले, आप समझे 2015 में जब आप वहां गए या उससे पहले, आप उसमें चले जाएं, तो जो हमारे जो ऑडियंस है ना वो मतलब उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप आज से 12 साल पहले थे या 13 साल पहले थे, जब आप वहां पे गए। मतलब लोग एजेंटों के थ्रू मतलब वो जलील होते हैं, मतलब फ्रॉड हो जाते हैं। तो किस तरीके से अपने दामन को बचाते हुए, अपने पैसों को बचाते हुए, अपने टाइम को बचाते हुए, किस तरीके से जो एक फ्रेश ग्रेजुएट है या जो जॉबलेस है, या इवन जो एक्सपीरियंस भी कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं, इवन मास्टर हैं, पीएचडीज भी हैं, ठीक है, वो किस तरीके से मतलब ना बाहर, खासतौर पे सऊदी अरब में समझता हूँ कि इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेस और डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानीज, फ्यूचर हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और एग्रीकल्चर के हवाले से। इवन हर सेक्टर जो है एग्रीकल्चर का, उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस हवाले से अगर आप थोड़ा सा समराइज कर दें तो फिर इंशाल्लाह मैं एक दो क्वेश्चन उनसे भी ले लूंगा। थैंक यू। जरूर, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा मुझे याद करवा दिया एजेंट्स वाला। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। वो हमारे यहाँ बड़ी एक मशहूर सी बात भी है कि वो चांद पे नील आर्मस्ट्रांग पहला बंदा पहुंचा, तो उसने देखा कोई आग जला के बंदे बैठे हैं, तो उसने पूछा भी मैं अरबों डॉलर लगा के आया हूँ, आप कौन, कहाँ से है? उसने कहा मैं एजेंट छोड़ गया। तो एजेंट के बारे में ये बड़ी ना एक है, जी ये जी। चीजें आती हैं। मुझे आपने मुझे मेरा जर्नी याद कराया। मैं 2014 में जब आया था तो तब एजेंट के थ्रू ही आए थे। उसने मुझे टिकट करवा के दी। और रिमेम्बर कि वो इस्लामाबाद से कराची, कराची में 6 घंटे का स्टे, देन दुबई, दुबई में फिर 6 घंटे का स्टे, देन दमाम 24 घंटे ट्रेवल करके सऊदीया पहुंचा। और तब 2014 में इतना अच्छा सिस्टम नहीं था। अभी सऊदीया ने बहुत डेवलप किया है दुबई के मुकाबले में। काफी अपने रूल्स उन्होंने चेंज किए हैं। मैं मुझे आई रिमेम्बर, मैं सुबह 3 बजे दमाम एयरपोर्ट पे जब लैंड हुआ, तो फिंगरप्रिंट्स के लिए उन्होंने लाइन लगाई। और मुझे 11 बजे बारी आई थी। मैं कुछ 7-8 घंटे लाइन में जब खड़ा रहा ना, तो उस दिन ही मैंने फैसला किया था कि आई विल गो बैक, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो वो मैं जिस तरह आपने बताया ना, तो उसके बाद जब हमने यहाँ सर्व किया, अपॉर्चुनिटीज देखी 2018-19 में, यही लेके मैं वापस 2019 में वापस आया। वहां पे जो अब आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, जो अभी पाकिस्तान के हालात हैं, वहां पे 4 साल मैंने काम किया। उसके बाद यही था कि वापस चलते हैं। क्यों? सऊदीया बहुत अच्छा है पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे काम के लिए। लेकिन अगेन वही चीज जो आपने जिक्र किया कि अभी हमारे अपने कुछ अमाल की वजह से, एक तो नो डाउट वी आर मुस्लिम्स, वी आर ब्रदर्स, हमें हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। लेकिन हमारे कुछ अपने अमाल की वजह से हम पाकिस्तानी यहाँ पे आई थिंक हमारे जो स्पीकर हैं, ये सब नेटवर्क प्रॉब्लम, प्लीज वेट, थिंक इंशाल्लाह ही विल रिस्पॉन्ड। चलें, कुछ क्वेश्चंस हैं, जब तक हमारे स्पीकर्स रिज्यूम नहीं करते मैं उनका आंसर देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स एंटोमोलॉजिस्ट के हवाले से ना, ये मिस्टर आमिर ने पूछा है क्वेश्चन। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता दूं, मैंने भी 8 साल एज ए रिसर्चर जॉब की है किंग्स यूनिवर्सिटी के अंदर। तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एंटोमोलॉजिस्ट के लिए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जी आप अ, इसमें, आई थिंक वो हमें दोबारा से ज्वाइन करेंगे, वो लेफ्ट कर गए हैं, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो उनके साथ। तो अभी 5 मिनट हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें यह है कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसर्च में भी हैं, और उसके अलावा कह लें कि ऑपरेशंस के अंदर भी हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब्स में आप कह लें कि मिनिस्ट्री के अंदर जॉब्स आती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, उनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब्स हैं, लेक्चरर की हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, रिसर्चर की जॉब हैं।
इवन आपको लैब्स के अंदर भी जॉब मिल जाती हैं, लेकिन ये ओपन नहीं होती। ये बात वही है जैसा उन्होंने बताया कि जी आप मेरे ख्याल में मिस्टर मुबशर ने बताया था कि जी कनेक्शन बेस ना बाज़ औक़ात चीज़ें होती हैं। तो आप ये फोरम हमने बनाया इसीलिए है कि आपका एक कनेक्शन डेवलप हो जाए। बाहर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तानी भाई बहनें हैं, वो मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे इस हवाले से। और उसमें फिर जो भी पॉसिबल गाइडलाइंस होगी, करियर काउंसलिंग होगी, वो हम इस फोरम पे इंशाल्लाह करेंगे। तो इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। और फिर कुछ कह लें कि ना इसमें म्यूनसिपैलिटी जो होती है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेरे बल्कि एक क्लास फेलो हैं, वो पिछले 10 साल से या उससे ज़्यादा शायद जद्दा म्यूनसिपैलिटी के अंदर काम कर रहे हैं। और उसमें जैसे ये मैं शेयर कर दूं कि जिस जॉब पे वो हैं, वो जॉब मुझे ऑफर हुई थी 2015 में। मतलब ये देखें ना आप, ये मोटिवेशन है कि व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान इन 2014 और 15, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, और मेरा स्कॉलरशिप हुआ पीएचडी का, मैं वहाँ पे गया तो उस दौरान मैंने अप्लाई किया। और हमारे एक है यहाँ पे नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फर्रुख है, फर्रुख बेग है शायद उनका नाम। वो भी सऊदी अरब में किंग्स यूनिवर्सिटी के अंदर रहे, वहां से शायद उन्होंने कोई जॉब की। उन्होंने एक पोस्ट मेरे सामने फेसबुक के ऊपर शेयर की थी, तो कि जी किसी को मतलब ना एंटोमोलॉजिस्ट चाहिए, तो मैंने अप्लाई कर दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं वहां पे चला गया, उनकी तरफ से ऑफर लेटर आ गया। तो अब एक ये था कि उस वक्त मैं खुद भी सऊदी अरब चला गया था किंग्स यूनिवर्सिटी में रिसर्चर के लिए, मेरी जॉब भी हो गई, स्कॉलरशिप भी हो गया पीएचडी का। लेकिन अब मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई कि मुझे किसी और जगह भी मेरी सिलेक्शन हो गई। अब ये था कि मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता और मतलब इग्नोर कर देता, लेकिन मैंने उनको रिप्लाई किया ईमेल उस कंपनी को कि मेरी तो जॉब मैंने किंग्स यूनिवर्सिटी को एज ए रिसर्चर ज्वाइन कर लिया है। हाउएवर अगर आपको कोई अच्छे कैंडिडेट की तलाश है तो मैं रेफर कर सकता हूँ। तो फिर मेरे एक जूनियर थे डॉक्टर सबूर, माशाल्लाह उन्होंने पीएचडी कर चुके हैं चाइना से। उनकी सीवी मैंने ली, उनसे रब्ता किया, उनसे कहा जी इस अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जाना चाहें तो मैं आपकी सीवी फॉरवर्ड करता हूँ। फिर मेरे क्लास फेलो थे जियाउल्लाह उनका नाम है, उनसे रब्ता किया, वो पाकिस्तान में कहीं टीचिंग की जॉब कर रहे थे। तो मैंने इन दोनों की सीवी लेके अपनी रिप्लाई जो ईमेल किया उसके साथ अटैच की और उनको फॉरवर्ड कर दी। अच्छा माशाल्लाह उनकी 2015 में ही उनकी दोनों की सिलेक्शन हो गई और वो वहाँ पे मतलब जॉब कर रहे हैं। अच्छा उसमें एक जो था भाई सबूर, वो वहाँ से 5-6 साल के बाद सऊदी अरब से चला गया चाइना, और उसके बाद अब वो पीएचडी करके शायद पाकिस्तान में सर्व कर रहा है। और जो जियाउल्लाह है वो अभी वहीं पे है। तो कहने की बात ये कि ये एक जरिया बन जाता है ना, किसी की रिस्क का जरिया अगर अल्लाह पाक आपको बना दे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये एक वो सदका जारिया है जो मैं समझता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद भी है कि कोशिश करो कि अपने ईमान से, अपने इल्म से, अपने जान माल वक्त से आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। अपार्ट फ्रॉम के वो आपका बरादरी फेलो है या नहीं है, आपका रिश्तेदार है कि नहीं है, वो इंसान है, इवन ये भी ना देखो कि वो मुसलमान है कि नहीं है। तो आज मैं वापस आ गया हूँ 8 साल के बाद, लेकिन स्टिल वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, एक जौला, ठीक है, वो माशाल्लाह उसने उम्रे बहुत कर रहा है, तो अब मुझे भी कुछ ना कुछ उसका सवाब मिलता होगा। तो ये चीज़ें देखें कि आप जहाँ भी रहें कोशिश करें कि अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा दें, और हमारे फोरम का मकसद भी यही है। बाकी मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें आ गई हैं एंड पे ना, मिस्टर जो हमारे कमर स्पीकर थे शायद अभी उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया है, लेकिन इट्स अ लास्ट मिनट। तो मैं अब बाकी जो आंसर्स हैं इंशाल्लाह लिस्ट हम शेयर कर देंगे जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्पीच होंगे। अभी मैं इंशाल्लाह फॉर्मली इस टॉक को एंड करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। 6:20 पे नेक्स्ट लेक्चर होगा। डॉक्टर अफजल हैं, आप काइंडली इसको लाजमी ज्वाइन करें। ही इज़ वो भी माशाल्लाह तकरीबन 15 साल से सऊदी अरब में है, मास्टर पीएचडी वहाँ से किया, फिर रिसर्चर भी